Hello, my dear students. In today's class, we will do chapter 3 working with function, which is a part of class 12th, and it is we are following right now estate series. Yeah. I have uploaded some videos there. If you didn't watch those videos, you can go to my playlist and check for the videos there. Okay. Now, time to understand the term function. फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम. सब प्रोग्राम क्या होता है? मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, which acts on data. We write the expressions, operations, and other things we can perform there, and it will return us a value. Clear? हमें कुछ वैल्यू को रिटर्न करके देगा. फंक्शन का ये काम है. अब why is a function important in our programming? Because we can invoke the function multiple times by just its name, and it will return us output there. ठीक है, we don't need to write the function multiple times. just हमने एक बार we will write in the beginning of the program, और उसके बाद हम क्या करेंगे? We can invoke it by just its name. ठीक है, अभी आप समझेंगे कैसे इन्वोकिंग करनी है, कैसे हम हाउ वी विल क्रिएट द फंक्शन एंड अदर थिंग्स. सो नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर फर्स्ट. To define function, we will use def keyword. We read about 35 keywords. Def is the one of them. Okay? And here we will define the function name. This will be given by programmer only. It's up to his or her choice. Clear? Parameters we will pass, like we want to perform some operations, so we need some variables there. So जो भी हम variables वहाँ लेंगे, we need to operate something. तो फिर यहाँ क्या करना होगा? हमें जो variables है वो यहाँ हमें in the function header we have to perform there, we have to mention there, and we will end the function header by the colon. Okay? After defining the function header, we will write some statements there, like what we want to perform there. Then we will use return keyword. It is completely optional. If you want to get an output from our function, you will use return function. Otherwise, no need to write it. Clear? Now, if we don't just learn one thing also, कि अगर हम return function नहीं लिखेंगे, it will return us none keyword. ठीक है, कि कुछ भी नहीं है वहां प्रिंट कराने के लिए. This is all about the functions definition, function declaration, and indentation is most important part. Yeah, and this part will be indented. Clear? और कितना इंडेंशन फॉल होगा, कितना इंडेंटेशन बाय डिफॉल्ट होता है? फोर स्पेसेस बाय डिफॉल्ट होता है. क्लियर जी? नाउ I will let you know how we write a function. Clear? जी, देखिए, def is a keyword. I am writing show, and I don't want to give any parameters right now. I just want Python compiler print for me welcome here. Yeah. Now I want to invoke. This part is function. This part is function. क्लियर है? अभी मैं क्या करूंगी? नाउ अभी मैं देखो हैशटैग दे रही हूँ, क्योंकि क्या करना है, मुझे कमेंट देना है. कमेंट के लिए हमने यूज किया था. और नाउ इन्वोकिंग अ फंक्शन. अभी मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ. ठीक है, इन्वोक और कॉल बोथ आर द सेम. Yes. So to invoke a function, I will use its name, and I will use parentheses. Now save it. Okay.
जी देखिए, क्या आपको शो हो गया? आपको वेलकम हेयर आपको शो हो गया। क्लियर? ठीक है, अभी हमने क्या किया था? यहाँ पे फंक्शन को इन्वोक किया था। यहाँ हमने प्रिंट एक कीवर्ड दिया था। अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अभी मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया। इफ वी यूज रिटर्न कीवर्ड हियर, तब क्या होता है? देखिए, तो भी हमें क्या मिल रहा है? वेलकम हियर हमें मिल रहा है। क्लियर? चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स की फंक्शंस में क्या होते हैं, कहाँ किनको क्या बोलेंगे और क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। देखिए, आर्ग्यूमेंट्स, अभी चलिए एक प्रोग्राम और लेती हूँ, एक और इसमें थोड़ा चेंजेस करती हूँ मैं टू let you know about the argument and parameters. I am passing an argument which is I want to print x 10। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं x की वैल्यू 10 कर रही हूँ। क्लियर? नाउ लेट्स चेक। अभी देखिए, सिर्फ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है और यहाँ नहीं किया है। ये पार्ट मैं अभी इसको लीव करती हूँ, मैं अभी एक को देती हूँ। ठीक है, ये आपको काम आएगा रिटर्न कीवर्ड में अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अभी मैं एक सम लेती हूँ यहाँ पर, फंक्शन नेम, और s इज अ वेरिएबल जहां पर मैं क्या करूंगी? x प्लस वाई को प्रिंट करूंगी और आई वॉन्ट की रिटर्न फॉर मी s वेरिएबल वैल्यू। क्लियर? नाउ देखिए, क्या ये मुझे कुछ शो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू तो मैं यहाँ इन्वोकिंग के टाइम पे मेरे पास नहीं है ना। देखिए, हम बाय डिफॉल्ट वी कैन मेंशन देयर, लाइक मैं अभी 10 कर रही हूँ और 20 कर रही हूँ। क्लियर? अभी एक और प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी अभी प्रिंट करवाया नहीं है। अगर मुझे टेक्स्ट स्क्रीन पर कुछ भी आउटपुट चाहिए तो आई हैव टू यूज प्रिंट फंक्शन देयर। नाउ एग्जीक्यूट इट। ओके, शो नेम एरर, शो इज नॉट डिफाइंड देयर, लाइन 6। चलिए, सबसे पहले हम लाइन्स को यूज करेंगे दे। ओके, सॉरी, देयर विल बी सम। जिस फंक्शन नेम से हम क्रिएट करेंगे वही फंक्शन हमें यहाँ डिफाइन करना है। ठीक है, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है मेरे लिए? वो 30 प्रिंट हो रहा है। क्लियर? देखिए, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं यूज करूंगी तो क्या होगा? चलिए, नन। देखो, मैंने बोला ना, अगर हम रिटर्न यूज नहीं करेंगे तो इट विल रिटर्न यू नन वैल्यू। क्लियर? नाउ अभी क्या हुआ था? अभी हम एक और टर्म जो मुझे समझानी थी, दैट इज देखिए, at the time of invoking, I have passed some values here. N or 20, n for x and y for 20 for y. Clear? तो जब भी हमारा पाइथन इंटरप्रेटर काम करता है, स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट करना, it will come to the statement first, not go to the functions. Why? I will let you know later on, because there is some inbuilt variable, जिसकी वजह से ये क्या करता है? डायरेक्ट स्टेटमेंट पर आता है एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या होंगी? हमारी वैल्यूज होंगी। इन वैल्यूज को जो हमने पास की है, इन वैल्यूज को बोलेंगे हम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और जो ये वैल्यूज हमने पास की थी, ये वैल्यूज को कौन रिसीव कर रहा है? x और y। जो वैल्यूज को रिसीव करेगा वो क्या होगा? आपका पैरामीटर्स होगा। ठीक है जी, ठीक है। So these are the terms here. Python refers to values being passed as argument and values being received as parameters. Clear? Now you will comment me
example for parameter and argument each. You will make your own example and comment me. Now the part is of execution which I told you वो कैसे होगा. ठीक है, चलिए. Flow of execution means the order in which Python interpreter executes the statements, clear, during the runtime environment. देखिए, whenever we write the coding, first of all we will define the functions. ठीक है, जहां हम functions define करेंगे, this part will be top level statement. क्या होगा? टॉप लेवल स्टेटमेंट. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ऑल फंक्शंस डिफाइंड एट द टॉप लेवल एंड दे आर फॉलोड बाय, और उनको कौन फॉलो करेगा? ये स्टेटमेंट्स फॉलो करेंगी जो कि फंक्शंस का पार्ट नहीं है. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि पाइथन डायरेक्ट स्टेटमेंट के पास जाता है, फंक्शंस के पास क्यों नहीं जाता है? क्योंकि पाइथन के पास एक इनबिल्ट वेरिएबल है, वो है मेन फंक्शन. ठीक है, अभी जैसे हम सी में क्या करते थे, देखो सी में क्या करते थे, हम मेन फंक्शन को इस तरह से हर बार डिफाइन करते थे कि नहीं? तो पाइथन तो इसीलिए स्मार्ट है क्योंकि पाइथन ने हमारा काम क्या कर दिया, बहुत हद तक इजी कर दिया है, इसीलिए सब पाइथन की तरफ मूव कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो यहाँ इनबिल्ट है, तो ये क्या करेगा? डायरेक्टली स्टेटमेंट 1 के पास आएगा. स्टेटमेंट 1, इफ आई एम इन्वोकिंग अ फंक्शन इन स्टेटमेंट 1, सो इट विल गो टू द फंक्शन, दैट फंक्शन, एंड रिटर्न अस अ वैल्यू. क्लियर? सो आई हैव यूज्ड, देखिए ये वही एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको बताया था. जस्ट अ लिटिल चेंज इन कोडिंग, नथिंग एल्स. ओके, रिटर्न एस. क्लियर? ठीक है, यहाँ आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा. देखिए अब इसमें क्या किया है, इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, मैंने एक नम वेरिएबल, फंक्शन इज द सेम, I just want to take the input from the user, so I will use input function here, and I want कि वो चाहे वो int में दे या int में दे, तो वो उसको ऑटोमेटिक पाइथन फ्लोट में कन्वर्ट कर दे. और ऐसे ही मैं उससे चाहूंगी आप सेकंड इनपुट भी मेरे को दे, और फिर मैं उसका सम करूंगी. आई विल कॉल द सम फंक्शन, और फिर मैं उसको क्या कर दूंगी, प्रिंट कर दूंगी. आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था ना. देखिए what I have done here, मैंने डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन लिया, I have used my function name and I passed. तो आप यहाँ पे num1 num2 भी कर सकते हैं. ठीक है, ये 10 की जगह num1 num2 भी कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. I will copy both the terms because it will take time to write the statements here, and now I will pass num1 num2, num1 num2. Clear? Now save it, run it, get your output, that is 21 and 9. आंसर इज 30. देखो फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन फंक्शन कॉल. What we have done till now, we have understood the function definition, we understood the need of function, why we are using it in our programming, एंड स्ट्रक्चर हमने इसका देखा, और इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखा. आपको आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स पता चले कि वो क्या होते हैं, और उसका तो आप मुझे कमेंट भी जरूर करेंगे. ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. Thank you. Bye bye.